Assalamualaikum second year students, welcome to lecture number 12 of your chapter 15 homeostasis, which is going to be the last lecture of our chapter, and today we'll be discussing the exercise as well as some important topics of the chapter. So in the exercise of your chapter you have objective and subjective part. The objective part has MCQs and blanks and they are very simple, very simplified. There should be no confusion in attempting them, therefore I'm leaving it to you to try and attempt them yourself. If you have any problem you can always ask me. On the other hand we're moving on to short questions. हम इनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. First question you have is differentiate between osmoconformers and osmoregulators. Differentiate के questions का आपको अच्छे से पता है, but I will remind you once again that you write them with a line in the center and headings on either side. First thing you need to write is the definition, then you have second point, and another important thing is that you must always include an example. So if you have example for any question you must add them in your answer or else your answer will be incomplete. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया है एनहाइड्रोबायोसिस के का, और इसकी डेफिनेशन आपको आपके ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाएगी, बट देव आस्क्ड फॉर एन एग्जांपल एज वेल. सो एग्जांपल जो है वो आपको क्योंकि बुक के अंदर नहीं मिलेगी, आई विल एड इट फॉर यू. द एग्जांपल ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस, जिसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कुछ जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन को सर्वाइव कर जाते हैं. सो ये कैरेक्टर हमें मिल जाता है. एक तो आपने फाइलम अपनी फर्स्ट ईयर बायो में पढ़ा था विच इज़ नीमाटोडा. नीमाटोड्स जो है इसके अंदर जितने भी जिनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एनहाइड्रोबायोसिस का कैरेक्टर शो कर सकते हैं फॉर सर्वाइवल. और इसके अलावा एक इंसेक्ट का नेम है जिसमें ये बहुत क्लियरली नज़र आता है हमें एनहाइड्रोबायोसिस, विच इज़ टार्डी ग्रेट. It's an insect that shows off anhydrobiosis and it loses 98% of its water when it undergoes dehydration, and it can survive in this condition as well. So you will mention these examples when you define the anhydrobiosis. Next one you have why does filtration take place at glomeruli part of nephron and nowhere else? This is a little bit of a conceptual question. तो इसका आंसर आपको खुद से जनरेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक दो पॉइंट्स पढ़े थे कि ग्लोमेरुलस के पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक था कि बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड आर्ट्रियोल्स देयर, उनका एक बड़ा बंडल होता है ग्लोमेरुलस के पार्ट में, एंड सेकंड दे हैव पोरस वॉल्स. सो यू विल ऐड दीज पॉइंट्स एंड मेक द आंसर योरसेल्फ. नेक्स्ट वन इज़ two metabolic altered states that generally cause 70% kidney stone formation. और इसके अंदर आपके पास आपको पता है किडनी स्टोन्स जो हैं 70% जो हमें नज़र आते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के होते हैं. तो वो कैल्शियम ऑक्सिलेट किन दो कंडीशंस की वजह से होता है? उसमें आपके पास है हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया. आप उन दोनों को डिफ़ाइन करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि उनसे ये स्टोन्स बनते किस तरह से हैं. Next one you have what is renal failure. In this you will write the entire topic of renal failure. And last one is account one each main adaptation in plants to high and low temperatures. इसमें आपने दोनों को सेपरेट हेडिंग के साथ आपने डिफ़ाइन कर देना है कि कौन कौन सी adaptations plants में नज़र आती हैं आपको with points. It's better if you write them with points because that way your answer is well presented. So in case of long question, the first extensive question that you have in your exercise is the nature of excretory product. Nature of excretory product in animals in various habitats. You must remember कि आपने इसको confuse नहीं करना कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से. ये दो टॉपिक्स अलग अलग हैं. नेचर वाला टॉपिक आपने एक्सक्रीशन के टॉपिक के बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा है, और कंसनट्रेशन वाला
आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का जब पढ़ा था तो वहाँ पर वो मेंशन था। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपके पास 3 मेन टाइप्स थी, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। इनको जिस तरह से मैंने आपको एलाबोरेट किया था आप उसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इन दिस यू मस्ट ऑल्सो ऐड यूरिया साइकिल एज वेल। आप इसको ड्रॉ भी करेंगे कम्प्लीटली लेबल्ड। आपकी डायग्राम में ये होना चाहिए और आपने तीनों प्रोडक्ट्स को सेपरेटली हेडिंग्स के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन यू हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म। दिस इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको आपने टॉपिक के अंदर से जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी आपने ऐड करनी है, प्लस यू नीड टू ऐड डायग्राम एज वेल। ऑलवेज रिमेंबर दैट wherever there is a possibility of adding a diagram you must add them, क्योंकि उससे आपका आंसर जो है वो काफ़ी प्रॉपरली एलैबोरेट हो जाता है। देन यू हैव रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके अंदर आपके पास जो लिवर का रोल है पूरा का पूरा, उसमें डिफरेंट उसके हमने टाइप्स देखी थी रोल्स की, उसमें सिंथेसिस थी और डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह। रोल ऑफ लिवर में आपने ऐड कर देना है टेबल। जो टेबल है पूरा जो आपने पढ़ा था 15 पॉइंट टेबल वॉज 15.1, उसके अंदर आपका रोल ऑफ लिवर कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड है, बट ऑफ कोर्स आपने उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में डिफरेंट हेडिंग्स के साथ डिफरेंट पॉइंट्स के साथ एंटर करना है। देन यू हैव डायग्राम of a vertebrate nephron with all the blood supply and state the function of each part. For this you have to draw the labeled diagram of nephron, पूरी की पूरी उसके different parts, and you must practice diagrams before attempting them in your questions or papers, क्योंकि अगर आपकी डायग्राम वेल वर्स नहीं होगी, आपकी डायग्राम क्लैरिफाइड नहीं होगी तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपरली लेबल करना है एंड देन ईच पार्ट का फंक्शन सेपरेटली विद हेडिंग्स एलैबोरेट करना है। देन यू हैव थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इन कोल्ड टेम्परेचर। फॉर दिस आपने मरीन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले मैमल्स का अलग अलग मैंने आपको बताया था, सो यू will write them separately with headings and you will add all of the points in them. Then you have excretion in plants. Excretion in plants के अंदर आपने पूरी डिटेल में पॉइंट्स के साथ पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया था नंबर्स के साथ। आई थिंक उसमें 5 या 6 डिफरेंट पॉइंट्स बनते हैं। यू मस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। You can write them by giving the numbers or by making a points of them, or you can write them with headings as well. Either way it will work. And then you have किडनी प्रॉब्लम्स विद देयर क्योर्स। इसमें आपका पूरा का पूरा किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स वाला पार्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, सो यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस अ लिटिल बिट एंड शॉर्टन इट टू सम एक्सटेंट। आप उसको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एलैबोरेटिव लिख सकते हैं, बट इट शुडंट बी टू शॉर्ट एंड ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैम शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। Among all of these long questions, the most important ones are the question number 3 that you have role of liver as excretory organ. This is a very important long question, so you must learn it very well. उसके बाद आपके पास है अकाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म। ये आपसे इसके अलावा कॉकरोच के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो जो ये दोनों सिस्टम्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और इनकी डायग्राम्स वंस अगेन आई एम मेंशनिंग डायग्राम्स ज़रूर आप करेंगे साथ में। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मेमोराइज इट वेरी केयरफुली। और इसके अलावा जो किडनी प्रॉब्लम्स और एंड देयर क्योर्स वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके अलावा इसके अंदर से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं। सो इसको आपने बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। So here at the end I have a little assignment for you. I have accumulated all the possible short questions that can be asked from your chapter from different topics of it, and there are 3 categories of these questions. Very very important with 3 star, very important with 2 stars and important with a single star. और ये सारे जो short questions हैं इसमें आपकी बुक के almost सभी topics cover हो रहे हैं। This is the page number 1. Here you have the page number 2
of your questions, and you can see that some of the questions have also mentioned कि ये questions जो हैं आपके previous papers में कहाँ पर आ चुके हुए हैं. Page number 3 and you have page number 4. So I suggest that you pause this video for each page and copy these questions on your notebooks, and then try to attempt these questions carefully after learning your chapter. इस तरह से आपके पास एक अच्छे फॉर्म में इस पूरे चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे, और आपके लिए दोबारा कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज़ करना या लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो आई सजेस्ट दैट यू टेक full advantage of all of the information given to you throughout all of the lectures of this chapter, और आप उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने लिए ये असाइनमेंट जो है उसको आप कवर करें, अटैम्प्ट करें. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विद द न्यू चैप्टर. अल्लाह हाफिज़.